Hello my dear kids, welcome back to the Acnowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6. Children, this is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So today we are going to start with chapter number 6 and the name of this chapter is New Questions and Ideas. So let's start with the chapter. Here you can see the two pictures are given. You have to provide at least 3 fascinating facts about these religions. So here you can see this is a picture of Buddhism, this is a religion, and also here is a picture of Jainism, this is also a religion. You have to find out 3 fascinating facts about these 2 religions and where to live. By the 6th century BCE, the religious practices in India became ritualistic and hard to follow. So 6th century BCE में क्या हुआ था? जो religious practices थे जो इंडिया में चल रहे थे वो क्या बन गए? Ritualistic और hard to follow. Means इसे follow करना बड़ा ही मुश्किल होता चला गया. Post-Vedic society was clearly divided into 4 worlds. जो Post-Vedic society थी उसे 4 worlds में divide किया गया था जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थी. Each one was assigned well-defined function और हर वर्ण को एक different task दिया गया था. The word system was based on birth. ये जो word system था ये birth पे base करा था. Means किस person का कहाँ पे birth हुआ है, किस family में birth हुआ है, उस पे depend करता था वो कौन से वर्ण का है. The 2 higher ones enjoyed powerful prestige and privileges. जो ऊपर के जो 2 हायर वर्ड्स थे उन्हें बहुत ज्यादा प्रेस्टीज और प्रिविलेज मिलता था. The वैश्य was engaged in agriculture, cattle rearing and trade. जो वैश्य थे उन्हें ये सारे काम करने पड़ते थे जैसे कि एग्रीकल्चर वो करते थे, cattle rearing करते थे और ट्रेड प्रैक्टिसेस को करते थे. They were also the principal taxpayers और यही टैक्स भी पे किया करते थे. The शूद्र served the 3 higher words और शूद्र का काम था इन तीनों वर्ड्स की सेवा करना. This word divided society generated tensions as Vedic ritual became rigid. ये जो वर्ण था जो भी सोसाइटी से टेंशन जनरेट होती थी उसको जो है ठीक करता था और जिसके बाद जो है रिचुअल से बहुत ज्यादा रिजिड होते चले गए. The Vedic practices of using cattle for sacrifices became widely prevalent. जो cattle को यूज किया जाता था sacrifice देने के लिए तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था. This made the people involved in agriculture represent the Brahmins. और इसके बाद जो agriculture जो है people जो है involve होने लगे agriculture में. Many great thinkers gave up their worldly life and engage themselves in the meditation. So बहुत सारे जो thinkers थे उन्होंने अपनी life को meditation में बोल दिया था. Such thinkers taught people that all religions treat each person equally. और ऐसे thinkers जो थे वो कहते थे कि हर जो person है वो एक जैसा है, हर कोई equal है. The teaching of these people were through Upanishads. तो ये लोग जो भी नॉलेज देते थे लोगों को उपनिषद में लिखे हुए होते थे, उपनिषद के थ्रू ये इंफॉर्मेशन देते थे लोगों को. द मोस्ट फेमस रिलीजन ऑफ दैट टाइम वाज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो उस टाइम पे 2 फेमस रिलीजन चल रहे थे और वो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म. नाउ कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द वैदिक रिलीजन. वैदिक रिलीजन जो है क्यों डिक्लाइन हो गया दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. Rise of cities in central India with their courts and their commerce which brought social, political and economic changes. So जो cities थी central India में वहाँ पे with their courts and commerce अपने courts और commerce के साथ जो है यहाँ पे social, political और economic changes होने लगे. Discontent with the caste system among the lower caste. जो caste system था उसमें जो लोअर कास्ट था वो इल ट्रीटेड एंड वांटेड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट. सो जो लोअर कास्ट था उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें क्या चाहिए था, उन लोगों को फ्रीडम चाहिए थी और रिस्पेक्ट चाहिए थी.
dissatisfaction with the Vedic practice of sacrificing cattle, which was valuable to farmers. अब यहाँ पे क्या होता था, जो कैटल था उन्हें जो है सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, उनकी बलि चढ़ा दी जाती थी, जो वो कैटल जो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उन कैटल को उनसे लेके उनको जो है बलि चढ़ा दी जाती थी. Now, desire among the common people for the simple language which could be understood by all. जो भी यहाँ के जो लोग थे वो सिंपल लैंग्वेज यूज किया करते थे, डिजायर करते थे सिंपल लैंग्वेज की, ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके. Social unrest due to the breakdown of tribal unity and the expansion of several petty kingdoms. जो सोशल एनवायरमेंट था यहाँ के वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकडाउन हो गया था, ट्राइबल यूनिटी बढ़ गई थी और सेवरल पेटी किंगडम्स जो है एक्सपैंड होने लग गए थे. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द उपनिषद्स. उपनिषद्स क्या है, जहाँ से इन्होंने ये सारे टीचिंग्स दी थी. द टर्म उपनिषद लिटरली मीन्स अ सेशन और टू सिट एट द फीट ऑफ अ मास्टर हु इम्पार्ट्स डॉक्ट्राइन. सो उपनिषद क्या है, ये उपनिषद जो है, उपनिषद का मीनिंग है सेशन, एक टाइम. तो उसमें क्या करना होता था, जो भी मास्टर है जो ये ज्ञान दे रहा है उपनिषद से, उसके पास बैठना है, उसके फीट में, उसके चरणों में बैठना है और उससे जो है जो भी नॉलेज है वो हमें लेनी है. There are total 108 Upanishads. Total 108 Upanishads हैं. The identity of the soul of the individual and the universe is repeated throughout the Upanishadic literature. जो आइडेंटिटी है इन सोल्स का, of these individual and the universe is repeated through the Upanishadic literature. ये उपनिषदिक लिटरेचर उसके थ्रू जो है बढ़ता चला जा रहा है. It propagated the notion of Atman seeking unity with the universal soul. So इसमें जो है एक नोशन की बात की गई थी, जो नोशन को प्रोपगेट कर रहा था, उसे बढ़ावा दे रहा था. क्या बता रहा था, ये यूनिटी के बारे में बता रहा था. यूनिटी विथ द यूनिवर्सल सोल, सिर्फ एक ही सोल है, उसके साथ यूनिटी मेंटेन करती है. तो उपनिषद प्रोक्लेम सैल्वेशन बाय नॉलेज और रियलाइजेशन rather than by faith or work. So ये उपनिषद जो है बताते थे रियलाइजेशन के बारे में कि यू कैन रियलाइज गॉड, और सिर्फ उस पर विश्वास रखना या वर्क करना ही काफी नहीं है, आपको वो रियलाइज भी होनी चाहिए. नाउ नेचर ऑफ द उपनिषद्स. उपनिषद्स की क्या क्या नेचर है. द उपनिषद्स वर प्रैक्टिकल. उपनिषद्स बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ करते थे. These philosophical texts criticize rituals and laid stress on the value of right belief and knowledge. So ये जो उपनिषद से ये रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते थे और इनका कहना था, ये सिर्फ स्ट्रेस देते थे राइट बिलीफ होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए लोगों में, और रिचुअल्स वगैरह का कोई मतलब नहीं है. दे एम्फसाइज दैट नॉलेज टू द आत्मैन और सेल्फ इज इम्पोर्टेंट. इनका ये मानना था कि नॉलेज ही सिर्फ जरूरी है, बाकी चीजें इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. द ब्राह्मण्स डोमिनेटेड सोसाइटी एज द हायर कास्ट. जो ब्राह्मण्स थे वो सोसाइटी के सबसे हायर कास्ट कहलाई जाती थी. सम क्षत्रिय प्रिंसेस इन पंचाल एंड विदेही spoke to the principles of Upanishad and created the atmosphere to reform the priest-dominated Vedic literature. So कुछ जो क्षत्रिय प्रिंस थे जो कहाँ रहते थे, पंचाल और विदेही में रहते थे, वो क्या कहते थे, वो उपनिषद्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे और उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बना रखा था जिसमें प्रीस्ट डोमिनेटेड वैदिक कल्चर के बारे में नहीं था. Hence the Upanishadic teaching promoted social stability and integration. और जिसकी वजह से जो उपनिषद की जो भी टीचिंग्स थी उसने सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी मेंटेन की और इंटीग्रेशन मेंटेन किया था. Like Buddhism and Jainism, the Upanishads were also a strong reaction to the dominance of priests and rituals. So जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म थे वैसे ही उपनिषद ने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया था, लोगों के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन छोड़ा था जिससे प्रीस्ट और उनके रिचुअल्स के को डोमिनेट किया जा सकता था.
The theory of karma also emerged as a part of Upanishadic philosophy. So उपनिषद कहते थे about कर्म, और ये भी तभी निकला था, कर्म की जो थ्योरी है तभी जो है सामने आई थी. It means that in order one's present birth, a person has to bear the consequences of the action performed by him or her in the previous birth. So in उपनिषद में ये कहा जाता था कि अगर कोई भी इंसान है, उसने अभी जन्म लिया है, तो उस पर्सन को हैज टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी बुरी चीजें हैं, जो भी बुराइयां हैं, उसे बियर करना पड़ता है, सहना पड़ता है, ऑफ द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय हिम और हर इन द प्रीवियस बर्थ. तो पिछले जन्म में उसने जो भी दुष्कर्म किए हैं उसकी सजा उसे इस जन्म में मिलती है. तो उपनिषद ये कहते हैं. द डॉक्ट्राइन of karma was added to the broader concept of the social and sacred obligation. और ये जो डॉक्ट्राइन था कर्म का, ये जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट इसने कर लिया था, और ये इन सारे एस्पेक्ट्स में ऐड हो चुका था. Now children, we have learned about Upanishads. Now let's learn about the Buddhism. Buddhism क्या है? Buddhism is a religion and the philosophy that developed from the teaching of Gautam Buddha. So गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने कुछ टीचिंग दी थी लोगों को, जिसके बाद बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था. So he was a teacher who lived in northern India between the mid 6th and mid 4th centuries BC. So mid 6th से mid 4th century के बीच में वो थे. गौतम बुद्ध. Who is Gautam Buddha? Gautam Buddha was born on in 563 BCE as Siddharth in Lumbini. So उनका नाम था सिद्धार्थ, जो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, नियर कपिलवस्तु. कपिलवस्तु के पास में है ये लुम्बिनी. इन प्रेजेंट डे नेपाल, और आज के डेट में हम इसे नेपाल के नाम से जानते हैं. His father was King सुद्धोदना. उनके फादर का नाम था किंग सुद्धोदना of the शाक्य क्लैन of कपिलवस्तु. So कपिलवस्तु के जो शाक्य क्लैन था उसके वो किंग थे. His mother Maya died 7 years after his birth. तो उनके जन्म के 7 साल बाद उनकी जो मदर थी, जिनका नाम था माया, उनकी डेथ हो गई थी. He was reared by his mother's sister महाप्रजापति. तो उनकी जो मदर की जो सिस्टर थी महाप्रजापति, उन्होंने ही उनकी देखभाल की, उन्हें बड़ा किया. The prince enjoyed an opulent life in the royal palace. So रॉयल पैलेस में उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइफ बिताई थी. When he was 16 years of age, he married a beautiful prince यशोधरा. जब वो 16 years के हो गए तो उनकी शादी करा दी गई प्रिंसेस यशोधरा से. When he was 29 years old, he went on a ride to the city on his chariot. So जब वो 29 years के हुए तो अपने रथ पे सवार होके वो कहाँ गए? एक राइड पे गए. There he saw an old man, a sick person, a corpse being carried to a cremation ground. तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक कॉर्प्स मीन्स मरा हुआ इंसान जो है कहाँ लेके जा रहे हैं? ग्राउंड में जा रहे हैं. And finally, a Mendian seated in meditation beneath a tree. तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है पेड़ के नीचे मेडिटेशन में बैठा हुआ है. These encounters, known as the four great sights, left a deep impression on his mind. तो ये चारों चीजें जब उन्होंने देखी तो उनके दिमाग को बहुत ही गहरा उसका असर हुआ. And he renounced his royal life and entered the forest. उन्होंने ये देखते ही अपनी क्योंकि इस चीज का बहुत ही गहरा असर उनकी लाइफ में पड़ा, तो उन्होंने क्या किया? अपनी जो रॉयल लाइफ थी उसे छोड़ दी और वो फॉरेस्ट में चले गए. He became a monk in search of truth and knowledge. वो एक क्या बन गए? साधु बन गए और ट्रुथ और नॉलेज को खोजने लगे. Over the next 6 years, Siddharth practiced meditation. 6 सालों तक उन्होंने लगातार मेडिटेशन किया. While meditating under a peepal tree in Bodh Gaya, he attained enlightenment. So मेडिटेशन करते वक्त एक पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे जो बोध गया में है, और वहाँ ही उन्हें अपने भगवान से वो मिल पाए, उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया, वो ईश्वर से मिल पाए. From then on, he came to be known as the Buddha or the enlightened one. तो तब से ही उन्हें बुद्ध कहा जाता है या enlightened one कहा जाता है. He delivered his first sermon at a deer park in Sarnath outside Varanasi.
सो वाराणसी के बाहर सारनाथ में उन्होंने अपनी पहली जो है आप कह सकते हो सर्मन दिया, भी सब पहली इंफॉर्मेशन दी जो लोगों को दिया थी। इट इज कॉल्ड द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, उसे टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है। आफ्टर बिकमिंग एनलाइटेंड बुद्धा स्पेंट 45 years traveling and preaching. So enlightened होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के 45 years उन्हें ट्रैवलिंग और लोगों को ज्ञान देने में निकाल दिया। He died at the age of 80 at Kushinagara in East Uttar Pradesh in 483 BC. जब 80 years के हो गए तो कुशीनगर जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है वहां पे उनकी डेथ हो गई। Now the Buddha's teaching, अब उनके क्या क्या टीचिंग्स थी that we are going to learn. बुद्धा preached non-violence and अहिंसा, वो non-violence और अहिंसा का पाठ पढ़ाया करते थे। He was against Vedic sacrifices which led to the killing of animals. वो Vedic sacrifices के against थे जो क्या बताता था, वो killing of animals को मोटिवेट करता था। वैदिक कल्चर में एनिमल्स को बलि चढ़ाई जाती थी तो उसके अगेंस्ट थी। Central to Buddha's teaching are the four noble truths. So बुद्धा के जो भी टीचिंग थी उसके 4 noble truths हैं that we are going to learn. Suffering is an integral part of our lives. हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है सफरिंग, किसी चीज को सफर करना। Suffering is caused by our desires. जो भी हमारे डिजायर है उसकी वजह से ही हम सफर करते हैं। Suffering ends when our desire ends. जब हमारे डिजायर एंड हो जाएंगे, जब डिजायर हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारी सफरिंग भी खत्म हो जाएगी। जब तक डिजायर रहेगा हम सफर करते रहेंगे। फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिसिंग द 8-fold पाथ। तो उन्होंने कहा था ये जो भी सफरिंग है उससे अगर आपको फ्री होना है तो आपको जो है कुछ 8-fold पाथ उन्होंने बनाया था, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सफरिंग खत्म हो सकती है। ये यू कैन सी बुद्धा ऑन अ चैरियट राइड थ्रू द सिटी। बुद्धा जब चैरियट राइड में जा रहे थे सिटी से। इन दोज टाइम्स संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ अपर कास्ट। वहां पे जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग संस्कृत में ही बात किया करते थे और रिलीजियस टीचिंग्स एंड रिचुअल्स वर कैरिड आउट इन संस्कृत। तो जो भी रिलीजियस टीचिंग्स थी या फिर रिचुअल्स थे वो सारे संस्कृत में ही हुआ करते थे। The common people spoke in Pali and Prakrit. जो वहाँ के जो कॉमन जो लोकल लोग थे वो पाली और प्रकृत भाषा का यूज किया करते थे। So they could not follow much of the religious teaching of the Brahman. इसलिए क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी तो वो ब्राह्मण्स की जो भी टीचिंग थी उसे वो इजीली समझ नहीं पाते थे। बुद्ध preached in Pali which was the language of common people. अब बुद्धा ने जो भी टीचिंग दी वो उन्होंने पाली लैंग्वेज में दी जो कि एक कॉमन लैंग्वेज थी वहाँ के लोगों की, तो लोग उसे जल्दी से समझ गए। बुद्धा लेड एम्फेसिस ऑन द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। बुद्धा ने कहा कि हमें निर्वाणा चाहिए। दिस इज लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। सो उन्होंने कहा कि हम लास्ट में सबको निर्वाणा ही मिलना चाहिए, जो है इस जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाना। मीन्स जो इंसान मरता है वो फिर कहीं ना कहीं जन्म लेता है, तो इस पूरे साइकिल से छुटकारा अगर आपको चाहिए तो आपको निर्वाणा ही लेना पड़ेगा। फॉर दिस ही सजेस्टेड द 8-fold पाथ, और इसके लिए उन्होंने 8-fold पाथ की तरफ इशारा किया। अकॉर्डिंग टू द बुद्ध द 8-fold पाथ कंसिस्ट ऑफ द नेक्स्ट थियरी। सो बुद्ध के अकॉर्डिंग 8-fold पाथ जो थे दैट इज राइट थिंकिंग, अच्छा सोचो, राइट स्पीच, अच्छा बोलो, राइट नॉलेज, अच्छी नॉलेज लो, राइट लिविंग, अच्छे से रहो, राइट एक्शन, अच्छे काम करो, राइट एफर्ट, अच्छे एफर्ट्स लगाओ, राइट ऑब्जर्वेशन, अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ चीजों को देखो, राइट मेडिटेशन, मेडिटेट करो अच्छे से, बुद्धिस्ट लिटरेचर को अच्छे से पढ़ें। द पीपल हु फॉलोड बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स आर नोन एज बुद्धिस्ट। सो वो लोग जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों को बुद्धिस्ट कहा जाता है। The teaching of Buddha are mainly compiled in 3 books called the Tripitakas. जो बुद्ध की जो भी 3 बुक्स हैं उन्हें कंपाइल करके त्रिपिटका बनाया गया। These are as follows: विनायक पत्रिका, अभिधम्मा पत्रिका एंड सुता पत्रिका।
सो ये 3 पत्रिकाएं हैं जिन्हें जो है जिसमें बुद्ध की जो भी टीचिंग्स हैं वो सारी लिखी हुई हैं. The earliest Buddhist texts were written in Pali, which was spoken in Magadh and was form of Prakrit. So जो बुद्ध की जो भी टीचिंग थी वो पाली लैंग्वेज में थी, जो जिसे बाद में मगध भाषा में कन्वर्ट किया गया और बाद में प्रकृत में. बुद्धा was a capital B. Buddha with a capital B refers to the founder of Buddhism, while Buddha in the term for an enlightened person. So here children you can see the picture of Lord Buddha. Now what is Sangha? The disciples of Buddha who were ordained as monks and nuns formed the Sangha. So ये जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्ध को मानते थे, वो सारे जो डिसाइपल्स थे वो सारे मिलके क्या बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे जिसे हम संघ भी कह सकते हैं. So here you can see the people who form the people like monks and nuns जो आपस में मिल जाते थे वो संघ बनाते थे. They usually stayed together in a monastery, और ये लोग जो है एक मोनेस्ट्री में एक साथ रहा करते थे. Membership of the Buddhist order was not restricted by caste. तो जो भी बुद्धिस्ट ऑर्डर का मेंबर बनना चाहता है उसको किसी भी कास्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. However, slaves, soldiers, students and other persons under obligations needed the permission of their superiors. लेकिन ये जो लोग थे, स्लेव्स हो गए, सोल्जर हो गए, स्टूडेंट हो गए या दूसरे पर्सन हैं, उन्हें जो है परमिशन लेनी पड़ती थी अपने सुपीरियर्स की इस संघ को ज्वाइन करने के लिए. The members of the संघ were required to beg for their food from door to door. जो लोग थे, जो इस संघ के जो मेंबर्स थे, उन्हें अपने फूड के लिए खुद जो है घर घर जाके जो है भटकना पड़ता था और फूड को बेग करना पड़ता था. The विनय पत्रिका lays down the rules and regulations on the conduct of nuns and monks in the संघ. So जो विनय पत्रिका है इसमें क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं मॉन्क्स को या फिर नन्स को, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. Now let's learn about the Buddhist art and architecture. Buddhist monuments and sculptures are found at many places. So Buddhist monuments और जो sculpture है वो बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं हमें. These 3 types of structures are associated with Buddhism. So 3 टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है. तो पहला है स्तूपास, देन द मोनेस्ट्री जिसे विहारास भी बोला जाता है, टेम्पल जिसे चैत्य गृह भी बोला जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्तूपास. स्तूपास आर लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम्स विद अ सेंट्रल चैम्बर. सो स्तूपा एक बड़े सा हेमिस्फीयर के शेप में एक डोम है जिसमें एक बीच में एक चैम्बर है. The relics of Buddha or other monks were placed in beautifully carved caskets here. So जो बुद्धा थे उनकी मूर्ति को और उनके जो अदर मॉन्क्स हैं उनकी मूर्तियों को यहाँ पे ब्यूटीफुली कार्व करके और यहाँ पे रखा जाता है. The casket were kept inside the central chamber. So ये जो casket है इसे central chamber में रखा जाता है. The relics could be a tooth, nail or hair. जो यहाँ पे जो relics हैं वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई tooth हो, nail हो या फिर hair हो. The central chamber of the stupa is built of unburned brick. जो सेंट्रल चैम्बर है स्तूपा का वो किससे बना है, वो अनबर्न ब्रिक से बना हो, मीन्स ऐसा ब्रिक जिससे जो है पकाया ना जाता हो. एंड द अदर स्ट्रक्चर्स इज मेड ऑफ बोर्ड ब्रिक. लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर है वो पक्के हुए ईंट से बनाया जाता है. कवर्ड विद प्लास्टर, जिसे प्लास्टर से कवर किया जाता है. एट द टॉप ऑफ द स्तूपा देयर इज अ स्टोन और अ वुडन अम्ब्रेला. स्तूपा के जो सबसे ऊपर पे एक स्टोन होता है या फिर एक वुडन अम्ब्रेला होता है. And it is surrounded by a wooden fence enclosing the path. और उसे एक wooden fence से ढका जाता है जिसके आसपास रास्ता होता है. The path is meant for the ceremonial प्रदक्षिणा. प्रदक्षिणा के लिए पाथ ओपन रहता है जिसमें लोग जाके प्रदक्षिणा कर सकते हैं. ये you can see the picture of stupa. और आप देख सकते हो डोम लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए fence like structure is there.
Now let's learn about the monasteries and the viharas. The Sangh evolved the practice of vas or retreat during the rainy season. So ये जो संघ था ये कुछ practices को follow करता था जो rainy season में किए जाते थे. In keeping with this practices, monks and nuns remained in a fixed location for a certain period. So इस practice के दौरान जो monks थे या फिर जो nuns थे वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में काफी टाइम तक रुकते थे. These fixed bus retreated were held every year in temporary shelters, in pavilions and parks donated to the Sangh or in natural caves in hilly areas. So ये जो वासा फिक्स्ड वासा होता था ये हर साल होता था टेम्परेरी शेल्टर्स में. मीन्स वो शेल्टर चेंज होते रहते थे और ये कुछ भी हो सकता है. ये कोई पवेलियन भी हो सकता था, पार्क भी हो सकता था जो लोगों ने संघ को डोनेट किया हुआ है, या फिर कोई नेचुरल केव या हिली एरिया भी हो सकता था. Over the years, monks and nuns felt the need for more permanent shelter, and so monasteries or viharas were built. So अब जो लोगों को धीरे धीरे इन monks और nuns को धीरे धीरे लगने लगा कि उन्हें एक permanent shelter की भी जरूरत है. Over the years, monks and nuns felt the need for more permanent shelter, and so monasteries and viharas were built on land or in the cave donated to the Sangh by rich merchants, kings and landowners. So धीरे धीरे जो monks और nuns थे इन्हें ऐसा लगने लगा कि इन्हें एक proper permanent shelter की जरूरत है. So इन्होंने विहाराज या फिर monasteries बनाने के बारे में सोचा. So monastery और विहाराज जो है बनाए जाने लगे वहाँ पे on land और caves donated by the Sangh. जो संघ को डोनेशन में लैंड या फिर केव मिलता था वहाँ पे ये विहाराज बनाने जाने लगे और इन्हें कौन डोनेट करता था? किंग और जो लैंड ओनर्स थे. Soon they began to reside in these viharas throughout the year. और जल्दी ही ये जो है लोग जो है यहाँ पे रहने लगे इन विहारास में पूरे साल, हमेशा पूरे सालों तक. Next is chaitya. Sometimes the monastic buildings were self-contained units and had a chaitya hall or chaitya mandir attached to the stupa, the chief object of worship. So कई बार जो मोनास्टिक बिल्डिंग थी वो सेल्फ कंटेन यूनिट बन गए थे एंड इसके अंदर एक चैत्य हॉल था या फिर चैत्य मंदिर था जो अटैच था टू द स्तूपा. स्तूपा से वो अटैच था. द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप. चैत्य वाज shrines, and these were long rectangular halls with rows of pillars erected on both sides with the apsidal at the rear ends. So ये जो चैत्य थे ये लंबे रेक्टेंगुलर हॉल्स थे जो अटैच थे आपके मोनास्ट्रीज तक, सूपा तक अटैच थे और ये जो हॉल्स थे ये रोज में डिवाइडेड थे, रोज और पिलर्स में डिवाइडेड थे जिसके दोनों साइड में कुछ पिलर्स लगे हुए थे. आर्किटेक्चरली चैत्य shows similarities with the ancient Roman way of designing columns and arches. So आर्किटेक्ट के तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो चैत्य है ऐसे डिजाइन किए थे जैसे रोमन्स ने अपने कॉलम आर्चेस को डिजाइन किया था. Several rocks cut chaitya have been found in Nasik, Kaneri, Ajanta and Kalvi. So बहुत सारे जो रॉक्स हैं उन्हें कट करके जो है और नासिक, कनेरी, अजंता और कालवे में ये ऐसे जो है आपको चैत्य जो है दिखाई दे सकते हैं. चिल्ड्रन हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मोनास्ट्री एट अजंता. Here this is the picture of the chaitya at Ajanta. Now children, let's learn about the spread of Buddhism. The teachings of Buddha was spread far and wide by his followers and monks. So जो भी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे वो बुद्धिज्म को हर जगह स्प्रेड कर रहे थे. उनके जो मॉन्क्स थे वो हर जगह बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे थे. बुद्ध की जो टीचिंग थी उन्हें हर जगह स्प्रेड कर रहे थे. ऑल्सो स्प्रेड to areas outside India like China, Japan, Myanmar, Tibet and Sri Lanka.
उन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर जो चाइना, जापान, ये जो नेबरिंग कंट्रीज थी उन सब जगहों पे भी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। एट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का, बुद्धिज्म स्प्रेड इनटू टू सेक्ट्स, महायाना एंड हिनायन। सो ये जो फोर्थ सेट था बुद्धिज्म का, बुद्धिस्ट काउंसिल का, ये हुआ था इन सारे प्लेसेस पे which is mentioned here. Now let's talk about Jainism. Jainism is one of the oldest religion of the world. So world का सबसे oldest religion है Jainism. According to Jain tradition, an enlightened person or a great teacher leads them to a path of dharma. So that Jainism tradition के according एक enlightened person या फिर एक ग्रेट टीचर ही है जो उन्हें धर्म के रास्ते पे ले जा सकता है। दिस टीचर इज कॉल्ड द तीर्थांकर, और ऐसे पर्सन को तीर्थांकर कहा जाता है। देयर आर 24 तीर्थांकर्स इन जैनिज्म। जैनिज्म में 24 तीर्थांकर्स हैं। द फर्स्ट वाज ऋषभदेव। महावीर वाज द 24th एंड द लास्ट तीर्थांकर। सो जो पहले तीर्थांकर थे वो थे ऋषभदेव, और जो महावीर थे वो 24th तीर्थांकर थे और सबसे लास्ट तीर्थांकर थे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वर्धमना महावीर। सो एज वी हैव लर्न कि महावीर वाज द लास्ट तीर्थांकर, मींस द 24th तीर्थांकर ऑफ द जैनिज्म। सो लेट्स लर्न अबाउट हिम। वर्धमना महावीर वाज born in about 599 BCE. He was the son of Siddharth. वो सिद्धार्थ के son थे। The chief of Janatric clan and Trisla, Lichvi prince of Vaishali. वो thus like Buddha, he was also a descendant of the Galactic martial clan which were a powerful political force of that time. So बुद्ध की तरह ये भी मार्शल क्लेन को फॉलो करते थे और वो उस टाइम के पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स थे। At the age of 30, Mahavir left home for a life of asceticism. So जब वो 30 years के हो गए तो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। At first, he followed the practices of an ascetic order called the निगंतारास। सो उन्होंने सबसे पहले अपने घर को छोड़ा और उन्होंने एस्थेटिक ऑर्डर को फॉलो किया जिसे हम निग्रतास के नाम से भी जानते हैं। निग्रतास वाज द सेक्ट दैट हैड बीन फॉलोड बाय द परशुनाथ। सो ये एक सेक्ट था जो परशुनाथ जो है फॉलो करते थे। द 23rd तीर्थांकर about 200 years ago before the time of Mahavir. So ये कौन थे? 23rd तीर्थांकर थे जो महावीर से भी 200 years पहले थे। Later the term Nirgantara was used for the members of the order that Mahavir founded. So महावीर ने जिन members को found किया था उनको इस नाम से बुलाते थे। After 12 years he attained enlightenment and became a Jain, meaning conqueror or Mahavir, meaning great hero. So 12 years तक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तपस्या की और लास्ट उन्होंने जाके एनलाइटनमेंट मिला 12 साल बाद, जिसके बाद उन्हें जिन या फिर कॉन्करर के नाम से भी जाने जाने लगा, या फिर महावीर एक ग्रेट हीरो के नाम से जाने जाने लगा। He spent his life preaching the message of Jainism. उन्होंने अपनी लाइफ को जो है जैनिज्म को लोगों को समझाने में ही स्पेंड कर दिया। महावीर डाइड इन 527 BC इन पावापुरी नियर राजगिरा। सो वो इस टाइम पे राजगिरा में उनकी डेथ। ना व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ महावीर? महावीर क्या कहना चाहते हैं, क्या टीचिंग्स थी उनकी? लाइक द बुद्धा, महावीर वाज आल्सो अगेंस्ट वैदिक रिचुअल एंड एनिमल सैक्रिफाइस। सो जैसे बुद्ध जो है वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ थे, वैसे महावीर जिसके खिलाफ थे और एनिमल सैक्रिफाइस के भी खिलाफ थे।
he taught people to lead a simple and virtuous life. उन्होंने लोगों को बोला कि वो एक सिंपल लाइफ रहे और एक वर्चुअस लाइफ जिए. He believed that every object, even the smallest particle, causes a soul. तो उनका कहना था कि भले ही कोई भी एक छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, हर चीज के अंदर एक आत्मा है. Therefore, one had to follow the principle of non-violence and stop killing insects, animals and human beings. So लोगों को एक छोटा सा भले ही वो कोई कीड़ा ही क्यों ना हो या कोई एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग, किसी को भी नहीं मारना चाहिए. Mahavir opposed the Varna system and said that all human beings are equal. वर्ण सिस्टम के खिलाफ भी वो थे और उन्होंने कहा कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे के सारे equal हैं. He stressed that freedom from the cycle of birth, death and rebirth was moksha, and this could be attained by following the three jewels of Tirthanas of Jainism: right faith, right knowledge and right conduct of action. So उनका कहना था कि ये जो साइकिल है जीवन मृत्यु और वापस से जीवन का, ये जो है कैसे खत्म हो सकता है अगर हमें मोक्ष मिल जाए. सो मोक्ष मिलने के बाद हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे, दोबारा मरेंगे नहीं. इस सब साइकिल से हमें छुटकारा मिल सकता है. और ये कैसे हो सकता है, मोक्ष कैसे मिल सकता है, जब अगर हम जो थ्री ज्वेल्स हैं या प्रीतनाज हैं उन्हें अगर फॉलो करें जैनिज्म में. और क्या थे वो? राइट फेथ, सही फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज, सही नॉलेज होना चाहिए, और राइट कंडक्ट में सही, हमें अपने एक्शन को सही से कंडक्ट करना है, गलत काम नहीं करना है. He advocated a simple life and extreme penitence to achieve the higher spiritual state. उन्होंने एक सिंपल लाइफ रहने को कहा और उन्होंने कहा कि हायर स्पिरिचुअल स्टेट होना चाहिए हमारे अंदर. He rejected the authority of Vedas and opposed complex ritual. तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिचुअल के खिलाफ थे और जो वेदा के जो अथॉरिटीज थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया. The teachings of Mahavir may be summed up as follows. So उनकी जो भी टीचिंग्स थी उन्हें हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला था अहिंसा, मीन्स नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल बीइंग. उनका कहना था कि हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, मीन्स किसी को मारना नहीं चाहिए. हर लिविंग बीइंग इक्वल होता है, हर किसी के अंदर एक सोल होती है, तो हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए. नाउ द सेकंड वाज सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए. नेक्स्ट इज अस्तेय, द प्रैक्टिस ऑफ नॉन स्टीलिंग, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए. त्याग, नॉट ओइंग प्रॉपर्टी एंड लीडिंग अ डिटैच्ड लाइफ. उनके हिसाब से ये था कि जो हमारे पास चीजें हैं वो हमारी नहीं है, उन्हें त्याग देना चाहिए और एक डिटैच्ड लाइफ जीनी चाहिए. लाइफ जी रहे हो आप, लेकिन किसी चीज से लगाव मत रखें. ब्रह्मचार्य, उनका कहना था कि हमें एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन जीना चाहिए. लीड अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी. तो हमें एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन जीना चाहिए, हमें संसार की मोह माया में नहीं फंसना चाहिए. So these were the teachings of Mahavir. Now let's learn about Jain literature. The sacred oral literature from the days of Mahavir has been passed down in the form of 12 angas. So जो भी महावीर के जो भी लिटरेचर थे, ओरल लिटरेचर थे, उन्हें 12 अंग्स में डिवाइड किया गया है. These अंग्स replace the 14 पूर्वास. अब इन अंग्स ने जो पहले 14 पूर्वास थे उन्हें रिप्लेस कर दिया था. Later new material was added to the अंग्स in the form of 12 उपांग्स. अब इनके जो 12 अंग्स थे इसको जो है अच्छे से इलेबोरेट किया गया, इसमें जो है ऐड करके इसे 12 उपंग बनाए गए और माइनर सेक्शन. उप अंग का मतलब होता है माइनर सेक्शन. The Jain texts were written in Prakrit. जो जैन टेक्स्ट थे उसे प्रकृत भाषा में लिखा गया. Jainism stressed that there is no need for any Vedic ceremony. उनका कहना था कि किसी भी वैदिक सेरेमनी की कोई भी जरूरत नहीं है. Or to invoke the god for help.
गॉड को बुलाने के लिए किसी भी ऐसे पूजा पाठ या वैदिक सेरेमनी की जरूरत नहीं है, आप उसे खुद में ही ढूंढ सकते हो. Now here you can see the statue of Jain monk Gomateshwar at Sarabelgod. So this is the picture of, this is the statue of Jain monk Gomateshwar. The enormous statue of Jain monk Gomateshwar at Saramangalova is in Karnataka is a very good example of Jain art. So Jain art को ये represent करती है statue. And let's learn about the Jain art and architecture. The contribution of the Jains to the artistic heritage of India are remarkable. So Jain art ने India को बहुत ही ज़्यादा अच्छे remarkable जो artistic heritage दिया. The Jains built many great temples in India. India में उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े temples बनाए, particularly in Rajasthan, Gujarat and Karnataka. So इन सारे जगहों पे आपको जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे जो इन्होंने बनाए. The Hathigumpa cave in Odisha was donated by Karavela. So Karavela ने इस टेम्पल इस केव को डोनेट किया था. The warrior king of Kalinga, ये कलिंगा के किंग. It is believed that Jain monks lived in these caves. ऐसा कहा जाता है कि इन केव्स में जो here you can see the picture. So ऐसा कहा जाता है कि इन केस में ये जो जैन मॉन्क्स हैं ये रहते थे. Now how the Jainism was spread? Jainism कैसे फैला? Jainism spread to many places like Magadh, Ankh, Kashi and Kosi. So इन सारी जगहों पे Jainism जो है फैल गया. It even spread to areas outside India like Nepal. So नेपाल तक भी ये पहुंच गया. Many rulers like Bimbisar, Ajashatru and Chandragupta Maurya patronized Jainism. So many rulers like Bimbisar, Ajashatru and Chandragupta Maurya patronized Jainism. इन्होंने Jainism को बढ़ावा दिया. After the death of Mahavir, the Jains split into two sects, the Digambars and Svetambars. So जैसे ही महावीर का डेथ हुआ, महावीर के डेथ के बाद जो है ये जैन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए. पहले थे दिगंबर्स और दूसरे थे श्वेतांबर्स. While the Digambars did not cover their bodies, the Shwetambar wore white clothes. So दिगंबर्स जो थे वो अपने बॉडी को कपड़ों से कवर नहीं करते थे, वो ऐसे ही घूमते थे. While लेकिन ये जो श्वेतांबर्स थे इनके व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनते थे. And artificial intelligence advances, it is increasingly finding way into religion. One area in which this is particularly evident is the development of religious chatbots. So, religious chatbots बना रहा है AI. Now, children, let's revise what we have learned here. In the 6th century BCE, new ideas challenging the caste system emerged. The dissatisfaction of people with the caste system in the Indian society led to the rise of two new religious sections, Buddhism and Jainism. Gautam Buddha was the founder of Buddhism. The teaching of Buddha comprises of the 4 noble truths and the 8-fold path. Mahavir preached the message of Jainism. Mahavir's teaching were based on the 3 Rath. Upanishadic thought centered around Atman and Karma. Now let's quickly answer these questions. Here you have to, the first question is examine the similarities between Buddhism and Jainism. So the similarities between the Buddhism and the Jainism is that they do not, they were against Vedic sculpture. You can say that they were against these, and they also were against the animal killing. So this is the similarity between the two. And what did the Upanishads stress upon? So the Upanishads stress upon different aspects. This you have to write here, children. What all aspects are covered here? Write it here. Now describe the basic deals of Jainism. Jainism के क्या-क्या basic points है that you have to write here. It pleased many of the topics that we have learned. And we should avoid killing animals. We should speak truth. These all aspects that we have to write here.
Now describe the basic principle of Buddhism. What are the basic principles of Buddhism? Buddhism preaches that for attaining God, you should look inside yourself and do not go for the Vedic, or do not. There's no need of religious preachings or and all these. And if you want to meet God, you can go in yourself. And if you want to go out of this living and death cycle, if you want to release yourself from this, you have to attain moksha, and for that you have to uh, look and read out the Buddhist scriptures. Now, how did Upanishadic policy help the Kshatriya to counter the supremacy of the Brahmins? So Upanishadic जो policy थी वो क्षत्रिय जो थे उनकी सुप्रीमेसी जो थी, ब्राह्मण्स की जो सुप्रीमेसी थी, उसको वो कैसे काउंटर करता है, दैट यू हैव टू राइट इट हियर. So with this, children, we have concluded the chapter. I hope that you have understood, and you have to complete the given exercises as your homework, and for that you have to read the chapter again, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.